क्या शेयर करूँ? अच्छा, ये क्या था? हो गया? कनेक्ट हो गया? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? अनम्यूट अनम्यूट कर दूं थोड़ी देर के लिए? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? जवाब नहीं आ रहा बच्चों की तरफ से। आई होप यू ऑल आर गुड। राइट, अब हम आज डिस्कस करेंगे। अभी तक we were discussing about the extracellular and intracellular buffers, first line of action, and then we were discussing then we discussed about the role of the lungs in controlling the acid-base balance of the body. And today we are going to start the renal control of acid-base balance, how the kidneys they are able to control, regulate the acid-base balance of the body. Yeah. So your kidneys are an excretory organ, fine. So the two main components which are present inside your body, which determines the acid and base, the two main components are hydrogen ions and bicarbonate ions. So if there is excess of hydrogen ions, that means the person is having acidosis, either excess of hydrogen ions or डिक्रीज इन नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, तो एसिडोसिस है। और अगर if there is excess of bicarbonate ions and less number of hydrogen ions, then there is alkalosis, ठीक है। So kidney जो है that is controlling the acid base balance by excreting either acidic urine or basic urine. If it is excreting acidic urine, ठीक है, तो what is it is doing? It is trying to get rid of the excess hydrogen ions from the extracellular, right? And if the kidney is producing urine, which is basic in nature, so it is actually what is it doing? It is removing the bases from the extracellular fluid. ठीक है? बेसिकली किडनी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस तरह से है, कंट्रोलिंग द बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस। कैसे? बाइकार्बोनेट्स जो है, रिमेंबर दे आर बीइंग फिल्टर्ड, ठीक है, they are filtered and they are then reabsorbed, right? Bicarbonates they get filtered and then they are reabsorbed from the renal tube, right? Hydrogen ions जो है they are secreted, ठीक है, they are neither filtered nor reabsorbed, they are secreted. ये दो important चीजें हैं to remember. The bicarbonates filter होके and then they get reabsorbed uh, like sodium chloride and like glucose and amino acids. लेकिन the hydrogen ions जो हैं they are secreted, right? All right. So now up, let's talk about the acid part of the body. Your body is making acid, ठीक है, and about 80 milliequivalents of non-volatile acids they are produced from the body. They are produced in the body by the metabolism of proteins, ठीक है, and now you have to get rid of these 80 milliequivalents of non-volatile. What do you mean by non-volatile? Non-volatile means these are the acids which cannot be expired through air, ठीक है, they cannot be excreted by the lungs, ठीक है। volatile acids वो है they will combine like water plus carbon dioxide or hydrogen ion plus bicarbonate ions being carbonic acid and then become carbon dioxide and water, and then that carbon dioxide is excreted by the lungs, ठीक है। They are volatile acids, लेकिन they are non-volatile acids which cannot become carbon dioxide and then they cannot be excreted by the lungs, ठीक है। So
These non-volatile acids, they are excreted by the kidneys, right? Acha. So excretion of acids non-volatile which are produced by the body, but the body has to get rid of it through the kidneys. इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन किडनी का वो ये है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन द यूरिन, क्योंकि देखो बाइकार्बोनेट आयंस आर बीइंग फिल्टर्ड थ्रू द किडनी, ठीक है, आर फिल्टर्ड इन द रीनल ट्यूब। तो अगर वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन, द बॉडी the person will lose a very important buffer from the body, which is the bicarbonate buffer system. ठीक है, so the kidneys must also prevent loss of bicarbonate in the urine, a task that is quantitatively more important than the excretion of non-volatile acid. Because the kidney has to save the bicarbonate buffer system. अगर वो सारा फिल्टर हो जाता है और ये absorb नहीं होता तो the kidney will get and the bicarbonate will be lost through the urine. So the main function, the significance of the control of the acid-base balance is the kidney has to get rid of the non-volatile acids and the kidney has to save the bicarbonate ions, reabsorb the bicarbonate ions which are filtered, right? Okay. So large number of bicarb, 4,320 milliequivalents bicarbonates, they are filtered into the renal tubules. See the amount of the bicarbonate that is filtered. और अगर ये reabsorb नहीं होगी तो you are losing daily, you are losing this amount of carbohydrate. ठीक है, filtration कैसे पता चलती है? If you multiply the GFR with the amount of that substance in the plasma. ठीक है, GFR is 180 liters per day and amount of the bicarbonate in the plasma is 24 milliequivalents per liter, and then it takes 4,320 milliequivalents of bicarbonate which are filtered continuously into the renal tubules. ठीक है, under normal conditions all these bicarbonate ions जो है they are reabsorbed, वापस चले जाते हैं, ठीक है, so thereby conserving the primary buffer system of the extracellular fluid. ठीक है, so ये आपका रीनल ट्यूबुलर, ये ल्यूमन है आपका, ठीक है, ये ट्यूबुलर सेल्स है, ठीक है, ये इंटरस्टिशियम है और आगे इसके ब्लड वेसल्स है, ठीक है। सो जो बाइकार्बोनेट्स फिल्टर हो रहे हैं दे आर रीअब्सॉर्ब्ड, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड 4,320 bicarbonates which are being filtered into the tubular lumen, they are reabsorb, वापस reabsorb हो जाते हैं, राइट। अच्छा, तो 4,320 मिलीक्वेवलेंट्स बाइकार्बोनेट फिल्टर हो रहे हैं, राइट, और कितने हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं, 4,400 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर सिक्रीटेड। ठीक है, ये देखो सिक्रीशन का क्या मतलब है, एक ट्यूब्यूल से निकल एंटर हो रही है ल्यूमन में, सेल से अगर कोई चीज निकल के एंटर हो रही है दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन। तो हाइड्रोजन आयन जो फॉर्म हो रहे हैं ट्यूबुलर सेल्स में, they are leaving the cells and they are entering the tubular fluid through the process of secretion. याद रखो there is a difference between secretion and excretion. Okay, excretion में you are getting rid of the substances from the body. ठीक है, बॉडी के अंदर से निकल रही हैं ये चीजें, राइट, लाइक एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एक्सेट्रा। लेकिन सिक्रीशन में क्या है कि cells से substances are moving from the cells into the tubules, ठीक है, like sweat, like sodium, like so many things जो कि secrete हो रही है from the cells into the ducts or into the tubules, ठीक है, this is called secretion. So 4,320 milliequivalents sodium bicarbonates are filtered
जितने फिल्टर हो रहे हैं सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं एंड 4400 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर सिक्रेटेड। ठीक है, एक अब दिमाग में यहाँ बैठा दो अच्छी तरह से। अच्छा, अब क्या है कि जो आपकी रीअब्जॉर्प्शन है, ये देखो, जो रीअब्जॉर्प्शन है बाइकार्बोनेट की, ये फिल्टर होके ह्यूमन में आ गया ना बाइकार्बोनेट, इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द सीक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूल। Reabsorption of bicarbonate from the renal tubular fluid into the renal cells depends upon the secretion of hydrogen ions from the renal tubular cells into the renal tubular fluid। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है दैट इज बीइंग फिल्टर्ड फ्रॉम द tubules from the glomerular capillaries into the renal tube। ठीक है, अब क्या it's a weak base so it will dissociate into sodium ions and bicarbonate ions। ठीक है, these bicarbonate ions they will combine with the hydrogen ions जो के form हुए थे into the renal tubular cells and these hydrogen ions they are secreted from the renal tubular cells into the tubular fluid through sodium hydrogen exchanger through secondary active काउंटर ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सोडियम आयंस जो है, बिकॉज ये सोडियम आयंस जो है दे आर मूविंग डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है दैट इज रिमूविंग सोडियम फ्रॉम द cell into the interstitium। As a result of that, sodium ions here will decrease। when the sodium ions here will decrease, there will be more sodium ions in the tubular lumen and they will try to move in। They will get themselves attached to a counter transport। ठीक है, इन द tubular lumen ये अटैच हो जाएंगे इस काउंटर ट्रांसपोर्टर के साथ और साइमल्टेनियसली क्या होगा, दिस काउंटर ट्रांसपोर्टर हैज एबिलिटी टू कंबाइन विद हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो कंबाइन करेंगे with the sodium hydrogen exchanger and the driving force of sodium ions which are moving from the tubular fluid into the cell will make the hydrogen ions to move out। ठीक है, into the tubular fluid। secretion हो गई है hydrogen ions की into the tubular fluid। now this hydrogen ion will combine with the bicarbonate ions to form carbonic acid। ठीक है, this carbonic acid then will become carbon dioxide and water, right? The carbon dioxide then will diffuse into the renal tubular cell। कार्बोनिक एसिड जो है या बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो दे कैन नॉट readily penetrate the cell membrane। ठीक है, they do not penetrate the cell membrane। so it is only the carbon dioxide which can readily diffuse because it is highly lipid soluble, so it will enter the cell। so कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड। इट इज being formed inside the cell also। सेल में मेटाबॉलिज्म हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और इसी तरह से यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियम से भी एंटर हो रही है into the renal tubular cells। now this carbon dioxide will combine with water to form carbonic acid। और मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन abundant amounts in the renal tubular cells as well as the lungs। ठीक है, so what will happen कि कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, this carbonic acid will then dissociate into hydrogen ions and bicarbonate ions। this will dissociate into hydrogen ions and bicarbonate ions। now these hydrogen ions वो कहाँ जाएंगे, they will be secreted into the tubular lumen और जो bicarbonate component है वो that will be reabsorbed through the into the interstitium and then it enters the blood through sodium bicarbonate
को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये यहाँ पे देखो जो शुरू के जो ट्यूब्यूल्स हैं, अर्ली पार्ट ऑफ द जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे जो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इट इज शोइंग, इट इज अप्लाइंग टू सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से साइकिल चल रहा है, ठीक है। कि ऊपर से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है वो फिल्टर हुआ, वो एंटर हुआ आपके रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड में। 4320 जो है बाइकार्बोनेट्स आपके फिल्टर हुए, and all these bicarbonates they have to be reabsorbed, all of them they should be reabsorbed, ठीक है। उनकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है? बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब है कि 4320 हाइड्रोजन आयंस आर सिक्रीटेड टू रीअब्सॉर्ब 4320 बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। 4320 bicarbonate ions will combine with 4320 hydrogen ions, ठीक है, which are secreted from the tubular cells, and when they will combine, that's how all your bicarbonate ions they are being reabsorbed, or they should not be lost from the body under normal physiological conditions, otherwise you are going to lose a very important bicarbonate buffer, ठीक है। सो क्या होगा कि 4320 फिल्टर हो रहे हैं, 4320 सिक्रीट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयंस टू रीअब्सॉर्ब ऑल दीज बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं डिसोसिएट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, or carbon dioxide will combine with water again here to form carbonic acid, and this carbonic acid will form bicarbonate ion and hydrogen ions. हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो जाएंगे और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब ये बाइकार्बोनेट इज आयन इज नॉट दिस बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। दिस बाइकार्बोनेट आयंस का, these bicarbonate ions are formed inside the renal tubular cells, ठीक है। तो so this bicarbonate ion is in the tubular fluid, and this is formed inside the renal tubular cells, जो कि वाया सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट के हेल्प से इट विल बी reabsorbed into the interstitium। ये साइकिल इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो एक बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए यू नीड वन हाइड्रोजन आयन टू बी सीक्रेटेड, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फिर 4400 हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। एंड तो बाकी जो 80 हाइड्रोजन आयंस बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज 4400 हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं, तो 4320 तो यूज अप हो जाएंगे इन reabsorbing the bicarbonate ions। तो 80 मिली इक्विवेलेंट्स जो बच रहे हैं वो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो एक्चुअली दे आर द नॉन वॉलेटाइल एसिड जो कि एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। दे आर एक्चुअली द नॉन वॉलेटाइल एसिड व्हिच विल बी एक्सक्रीटेड, राइट। सो 80 मिली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द renal control of acid base balance? 80 milliequivalents of non-volatile acids produced from the metabolism of proteins have to be removed from the body by renal excretion, ठीक है। एक तो जो 80 milliequivalents non-volatile acid that has to be removed from the body by renal excretion. Number two, kidneys must also prevent the loss of bicarbonate, which is the primary buffer system of the body, ठीक है। अच्छा, how is kidney performing these actions? Kidneys are regulating extracellular fluid hydrogen ion concentration through three fundamental mechanisms। जब सवाल आपसे पूछा जाए बाय वे में कि how is your kidney regulating the extracellular fluid concentration, तो सारी कहानियां बताने के बजाय आपने ये बताना है कि it is causing secretion of hydrogen ions,
it is causing reabsorption of the filtered bicarbonate ions, right? And then number 3, it is producing new bicarbonate ions. Basically ये 3 mechanisms हैं through which the kidney is controlling the acid, regulating the extracellular fluid hydrogen ion concentration. How? Number 1, secretion of hydrogen ions. Number 2, reabsorption of filtered bicarbonate ions. And number 3, it is producing new bicarbonate ions. These are the 3 main mechanisms through which the kidney is regulating extracellular fluid hydrogen ion concentration. ठीक है? So एल्कलोसिस में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन एल्कलोसिस के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाइड्रोजन आयंस जो है वो कम हो गए, राइट? So what will happen? A kidney जो है it is secreting less hydrogen ions and fail to reabsorb all the filtered bicarbonate ions. ठीक है? Thereby increasing the excretion of bicarbonate ions. Let's alkalosis हो गई है. Alkalosis में bicarbonate बढ़ गए हैं. ठीक है? हम एक वैल्यू ले लेते हैं. Let's say 10 bicarbonate ions हैं और 10 ही आपके हाइड्रोजन आयंस है, राइट? तो लेट्स से कि अब बॉडी में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो आपके कम हो गए हैं, ठीक है? या हम कहेंगे कि बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गए. लेट्स से अब 10 की बजाय बाइकार्बोनेट हो गए 15, ठीक है? बाइकार्बोनेट्स हो गए हैं 15 क्योंकि बॉडी में एल्कलोसिस हुई है, बाइकार्बोनेट्स बढ़ गए हैं. 15 बाइकार्बोनेट जो है वो फिल्टर हुए हैं, ठीक है? और हाइड्रोजन आयंस जो है वो 10 ही हैं. पहले नॉर्मल रेशियो जो थी ना, सपोजिटली 10 बाइकार्बोनेट आयंस फिल्टर हो रहे हैं और 10 ही हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट हो रहे हैं. ये नॉर्मल सपोजिट वैल्यूज हैं. अब एक कंडीशन है एल्कलोसिस की. एल्कलोसिस में क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है? तो अब 10 की बजाय 15 बाइकार्बोनेट्स जो है वो फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन सिक्रीट जो है वो सिर्फ 10 ही हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं. भाई समझ में बात? सिक्रीट 10 ही हो रहे हैं तो 15 फिल्टर हो रहे हैं और 10 हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं. तो रीअब्सॉर्ब कितने होंगे? हाँ, रीअब्सॉर्ब कितने होंगे? अनम्यूट करना इनको, बेटा इनको अनम्यूट करो. हाँ क्या हुआ? हाँ जी बताओ. सवाल मेरा ये था कि अब 15 फिल्टर हो रहे हैं और बाइकार्बोनेट और 10 जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं. वो पता नहीं सुन भी नहीं कि सुन रही है. 15 फिल्टर हो रहे हैं और 10 हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहे हैं. तो रीअब्सॉर्ब जो है वो कितने बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होंगे? सिर्फ 10 बाइकार्बोनेट. जितने हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहे हैं उतने ही बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब. अब क्या हुआ कि 10 रीअब्सॉर्ब हुए तो ट्यूबुलर फ्लूइड में कितने बच गए बाइकार्बोनेट्स? 5 बाइकार्बोनेट्स. ये 5 बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सेस में है और वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट्स बढ़ गए, 15 फिल्टर हो रहे हैं. यहाँ पे या हाइड्रोजन आयन उतने ही हैं, ठीक है? तो 10 सिक्रीट हो रहे हैं तो वो 10 को तो रीअब्सॉर्ब कर लेगा लेकिन जो एक्सेस 5 है वो बाहर बॉडी से निकल जाएंगे, ठीक है? ये दैट्स हाउ योर किडनी इज ट्राइंग टू रेगुलेट द बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन इन द केस ऑफ एल्कलोसिस, ठीक है? अब एसिडोसिस में क्या हो रहा है? सॉरी बच्चों, एसिडोसिस में क्या हो रहा है कि
एसिडोसिस में क्या हो रहा है कि अब हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं, अब लेट से हाइड्रोजन आयन 15 हो गए हैं, ठीक है, और ऊपर से जो फिल्टर होके आ रहे हैं वो 10 ही फिल्टर होके आ रहे हैं, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट सारा के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएगी और हाइड्रोजन आयंस जो एक्सेस में है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि वापस आते हैं कि एसिडोसिस में क्या हो रहा है। एसिडोसिस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं, तो अब जैसे हाइड्रोजन आयंस 15 हो गए हैं, ठीक है, 15 हाइड्रोजन आयंस रिपीट हो रहे हैं, ऊपर से फिल्टर 10 बाइकार्बोनेट ही हो रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट सारे के सारे 10 के 10 रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, जो लेकिन एक्सेस हाइड्रोजन आयंस हैं वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। लेकिन एसिडोसिस में एक और चीज भी हो रही होती है, किडनी जो है न्यू बाइकार्बोनेट्स भी ऐड कर देती है, न्यू बाइकार्बोनेट्स बनाती है, और adding a new bicarbonate in the blood means you are replacing the excess hydrogen ions, right? ठीक है, तो एक्सेस एसिड्स निकल जाएंगे और जो किडनी न्यू बाइकार्बोनेट्स बना रही है वो कॉम्पनसेट कर देगा द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि कैसे रीनल ट्यूब्यूल्स हैंडल कर रही हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस। 4320 मिली इक्विवेलेंस बाइकार्बोनेट आयंस जो है फिल्टर हुए प्रॉक्सिमल, यहाँ से 85 जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गए। जब बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो आप साथ साथ समझते जाओ कि उतना ही 85% जो है हाइड्रोजन आयन सिक्रीट का हो रहा है टू रीअब्जॉर्ब द बाइकार्बोनेट, ठीक है। इन असेंडिंग और इन असेंडिंग में कुछ नहीं हो रहा, हो रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। थिक असेंडिंग वाले पार्ट में 10% जो है बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 10% बाई हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं टू रीअब्जॉर्ब द 10% ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा आगे चलो, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है बाइकार्बोनेट आयंस की 4.9%, ठीक है, 4.9% रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं बाइकार्बोनेट्स। तो हाइड्रोजन आयंस कितने सिक्रीट हो रहे हैं 4.9% टू रीअब्जॉर्ब दोस 4.9% बाइकार्बोनेट्स। अब नीचे आ जाओ, और एक्सक्रीट कितने हो रहे हैं बाइकार्बोनेट्स ओनली 1 मिली इक्विवेलेंस पर डे, ओनली 1 मिली इक्विवेलेंस पर डे। ये तो एक ओवरऑल पिक्चर है। अच्छा, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि कहानी कैसे चल रही है। ट्यूबुलर लूमेन से बाइकार्बोनेट्स जीएफआर में फिल्टर होके ये आ जाते हैं ट्यूबुलर ल्यूमन में, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि गेट करता है इनटू सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये जो इसके सोडियम वाला पार्ट है इट गेट्स अटैच टू द दिस काउंटर ट्रांसपोर्टर, तो ल्यूमिनल साइड पे अटैच हो जाएगा इस काउंटर ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। और दिस काउंटर ट्रांसपोर्टर जो है ये इसके साथ क्यों अटैच हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम का लो है। Why it is low? Because sodium is being removed on the basolateral side from the via the sodium potassium ATPase pump। यहाँ सोडियम निकाल रही है, सोडियम निकल रहा है तो यहाँ पे सोडियम होगी कम, अब यहाँ पे सोडियम है ज्यादा, तो क्या है कि एनर्जी जो है ना ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी लेवल हैज डेवलप्ड। दिस एनर्जी लेवल जो है that will make this counter transporter to work, ठीक है, that will make this counter transporter to work, and sodium जो है that will move from the tubular lumen into the tubular cell, और हाइड्रोजन आयन जो है वो they will get attached to this specific sodium hydrogen exchanger and
as sodium will move in, the hydrogen ion will move out. Okay? This hydrogen ion will combine with these bicarbonate ions to form carbonic acid, and carbonic acid will become carbon dioxide and water. Carbonic acid and bicarbonate, they cannot enter the cell, only carbon dioxide can enter the cell. This carbon dioxide will combine with the water to form carbonic acid. This carbonic acid will dissociate into hydrogen ion and bicarbonate ions. These hydrogen ions will be dissociated, and the bicarbonate ions in the early part of the tubules, they they will move into the interstitium and then into the blood vessels through sodium bicarbonate exchange. ठीक है, फोर ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे, राइट. तो लीनियर ट्यूबुलर सेल में क्या हो रहा है, हर दफा जब एक हाइड्रोजन आयन बनता है इन द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, अ बाइकार्बोनेट इज आल्सो फॉर्म एंड रिलीज बैक इन द ब्लड. ठीक है, तो हर दफा जब एक हाइड्रोजन आयन बनता है तो एक बाइकार्बोनेट आयन भी बनेगा. लीनियर ट्यूबुलर सेल में जब हाइड्रोजन आयन बनेगा तो एक बाइकार्बोनेट आयन भी बनेगा. ठीक है, एंड देन दिस हाइड्रोजन आयन गोज बैक इनटू द इंटरस्टिशियम. ठीक है, दूसरी बात क्या हो रही है कि the net effect of this equation is reabsorption of bicarbonate from the tubules. All the bicarbonate that actually enters the extracellular fluid is not the same as that filtered into the renal tubule. ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट फिल्टर होकर आया था, इट इज नॉट, और जो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली, both of them are not the same. ठीक है, reabsorption of filtered bicarbonate does not result in net secretion of hydrogen because the secreted hydrogen ions combines with the filtered bicarbonate and is therefore not excreted. अच्छा ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये जो बाइकार्बोनेट फिल्टर हुआ है उसकी जो रीअब्सॉर्प्शन हुई है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रही है वो तो कंबाइन करके बाइकार्बोनेट से तो पूरा एक्सक्रीट तो हुई नहीं. हाँ, आपको बताती, फिर मैं आपको बताती हूँ. ये देखो सोडियम आयंस, जो ये जो बाइकार्बोनेट, एक तो पहले ये बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो एक बाइकार्बोनेट आयन भी लीनियर ट्यूबुलर सेल में बन. ठीक है, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो ऐड हो रहा है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बाइकार्बोनेट आयन, ये वाला बाइकार्बोनेट जो फिल्टर हुआ था वो वाला नहीं है. ठीक है, जो फिल्टर हुआ था ये वो बाइकार्बोनेट नहीं है, ये नया बना है आपके लीनियर ट्यूबुलर सेल के अंदर. ठीक है, तीसरी बात इम्पोर्टेंट ये है याद रखने वाली कि ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये जो सिक्रीट हो रहे हैं, जो हाइड्रोजन आयंस हैं जब ये सिक्रीट हो रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये वापस आ जाते हैं इनटू द लीनियर ट्यूबुलर सेल्स. ये जो सिक्रीट हो रहे हैं ये एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, ये वापस कंबाइन करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस के साथ और वापस एंटर हो जाते हैं इनटू द लीनियर ट्यूबुलर सेल्स. ठीक है, ओनली जो वो एक्सेस 80 मिली इक्विवेलेंट्स है वो एक्सक्रीट होंगे, उनकी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैं कि इस सेल के लीनियर ट्यूबुलर सेल के अंदर एक बाइकार्बोनेट बन रहा है, एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है. ये जो बाइकार्बोनेट बन रहा है वो डिफरेंट है फ्रॉम दिस बाइक. अब तीसरी बात ये जो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा है ये एक्सक्रीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके वापस अंदर सेल के आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या है. रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 4400 सिक्रीट हो रहे हैं और 4320 बाइकार्बोनेट फिल्टर हो रहे हैं. तो ये जो बाइकार्बोनेट और
और जो हाइड्रोजन आयंस है ये रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड में टाइट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेस हाइड्रोजन आयंस और एक्सेस बाइकार्बोनेट आयंस वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। टाइट्रेट करने के बाद क्या होगा कि जो 80 मेग्नी इक्विवेलेंट्स रह जाएंगे ट्यूबुलर फ्लूइड में, बाकी के सारे टाइट्रेट होके वापस गो बैक इनटू द रीनल ट्यूबुलर सेल, ठीक है। राइट, सो एक्चुअली रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड में टाइट्रेशन हो रही है हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस। हाइड्रोजन आयन थोड़े से 80 मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, लेकिन 90% जो है वो सारे के सारे बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन आयंस के साथ टाइट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 15 हो गए 10 की बजाय, तो क्या होगा, एक्सेस bicarbonate will not be reabsorbed because and the excess bicarbonate will be excreted out, ठीक है। और एसिडोसिस में क्या हो रहा है, एक्सेस हाइड्रोजन आयंस है तो सारी के सारी बाइकार्बोनेट तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, लेकिन एक्सेस हाइड्रोजन आयंस जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है, दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट। So the basic mechanism by which the kidneys correct either acidosis or alkalosis is incomplete titration of hydrogen against bicarbonate, leaving one or the other to pass into the urine. जो भी एक्सेस में होगा वो यूरिन में निकल जाएगा, बाकी जो है वो टाइट्रेट हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने अभी तक बात ये की है कि जो इनिशियल पार्ट जो है ट्यूब्यूल्स है ना, वो अप टिल अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दी कि वहां पे जो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अप टिल थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ वहां पर एंड इन द अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल, वहां पे जो हाइड्रोजन आयन की सीक्रेशन हो रही है वो हो रही है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन फ्रॉम दिस लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड ऑनवर्ड्स इन ऑल द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन हो रही है वो हो रही है वाया प्राइमरी एक्टिव सिक्रेशन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एंड दिस इज अपनी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड द इंटरकलेटेड सेल्स, ठीक है। ये देखिए आप, राइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन की वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बना, बाइकार्बोनेट आयंस बना, एक हाइड्रोजन बना, एक बाइकार्बोनेट बना, ठीक है। ये इंटरकलेटेड सेल है, ये लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में और लेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अब कैसे सिक्रीट हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटीपीएस पंप है, एक हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है, एक हाइड्रोजन एटीपीएस पंप है और एक हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है। ये इंटरकलेटेड सेल्स में, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो है हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं। बाकी पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स का, वो वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। बाइकार्बोनेट जो यहाँ पे बन रही है ना इंटरकलेटेड सेल में, वो क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट से बाहर जा रही है, ठीक है। शुरू वाले ट्यूब्यूल्स में क्या कैसे था, सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर था। यहाँ पे इंटरकलेटेड में बाइकार्बोनेट वापस कैसे जा रही है, रीअब्सॉर्ब हो रही है थ्रू क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब आप ये देखो कि हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन हो रही थी वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से लेके थिक असेंडिंग तक 90% जो थी 95% बल्कि वो वहीं पे रीअब्सॉर्प्शन हो गई थी, सिक्रीशन हो गई थी, ठीक है। बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन हुई थी और हाइड्रोजन की अब पीछे रह गए थे सिर्फ 5%, सिर्फ 5% हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन रह गई है डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में।
बट दिस मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग एसिडिक यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, proximal tubule में hydrogen concentration can be increased only about 3-4 to 4-4 and the tubular fluid pH can be reduced to only about 6.7। proximal tubule में still thick ascending में hydrogen ion की concentration can be increased through secretion, can only be increased 3 to 4 folds and the tubular pH becomes only 6.7। लेकिन hydrogen ion concentration can be increased as much as 900 folds in the collecting tubules and collecting ducts। Okay? Collecting tubule or collecting ducts में due to the action of hydrogen ATPase pump and so hydrogen potassium ATPase pump, the concentration of the hydrogen ions here increases to 900 folds। ठीक है, और उससे पहले वाला जितना भी पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल्स का, वहां पे 3 to 4 फोल्ड जो है इंक्रीज होती है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 900 फोल्ड कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी एक्टिव पंप्स। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है कॉल्ड लिमिटिंग पीएच। maximum hydrogen gradient against which the transport mechanism can secrete in humans corresponds to a urinary pH of 4.5। ठीक है, अब यूरिनरी यानी ट्यूबुलर फ्लूइड का पीएच है 4.5। इस पीएच के अगेंस्ट मैक्सिमम जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग पीएच। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन द यूरिन इज 1000 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, and this is normally reached in the collecting duct and this is called limiting pH। limiting pH बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद कर लो। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था ना कि 4320 बाइकार्बोनेट्स फिल्टर हो रहे हैं, 4400 सीक्रेट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन। तो 4320 तो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन जो है वो आपस में टाइट्रेट कर लेंगे। अब पीछे बचे 80 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब ये जो 80 मिली इक्विवेलेंट्स नॉन वॉलेटाइल एसिड्स हैं, उनका क्या फेट है, उनके साथ क्या, वो कैसे बॉडी से निकलते हैं। अच्छा, अब याद रखो कि अगर हाइड्रोजन आयंस एक्सक्रीट हो रहे हैं, सिर्फ लेट्स से हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट हो रहे हैं जो बच गए, जो 80 मिली इक्विवेलेंट्स हाइड्रोजन आयंस बच गए थे ट्यूबुलर फ्लूइड में, जो कि रीअब्सॉर्ब नहीं हुए विद द बाइकार्बोनेट्स, तो 0.03 milliequivalent of free hydrogen ions needs 1 liter of urine to be excreted। यानी कि 0.03 मिलीक्विवेलेंट अगर फ्री हाइड्रोजन का बॉडी से निकालना है ना, तो उसके लिए आपको 1 लीटर यूरिन चाहिए होगा। इमेजिन करो 80 मिलीक्विवेलेंट आयंस को, हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड 2600 लीटर्स ऑफ यूरिन। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बंदा डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। तो हाइड्रोजन जो एक्सेस नॉन वॉलेटाइल 80 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयंस हैं, वो एक्सक्रीट आयोनिक फॉर्म में नहीं होते, वो कंबाइन कर देते हैं, वो आइदर दे कंबाइन विद द फॉस्फेट बफर्स और द अमोनिया बफर्स। ठीक है, दे विल कंबाइन विद आइदर फॉस्फेट बफर्स और अमोनिया बफर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 4400 हाइड्रोजन आयन जो सीक्रेट हुए थे, 4320 तो रीअब्सॉर्ब हो गए बाइकार्बोनेट के साथ, लेकिन जो 80 एक्सेस में बचे थे वो आयोनिक फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं हो गए। ये सब बातें जो बार बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। Either they excess hydrogen ions present in the tubular film, they will combine with the phosphate buffer or with the ammonia buffer। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, फॉस्फेट बफर हमने पहले पढ़े थे H2PO4 एंड H2PO4। ठीक है, अब फॉस्फेट बफर का हमने, आपको याद है मैंने पहले बताया था कि वाटर जब रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है ना रीनल ट्यूब्यूल से, तो फॉस्फेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल फ्लूइड में ज्यादा होती है। एक अच्छे बफर के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर इन द
रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड। तो रिलेटिवली फॉस्फेट बफर्स जो हैं दे आर मोर इन द रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो पीके जो है दैट शुड बी क्लोज टू द पीएच। इसका फॉस्फेट बफर का पीके जो है वो 6.8 है और यूरिन का भी पीएच जो है वो लो ही होता है। तो ये दिस इज एन आइडियल बफर, ठीक है। फॉस्फेट बफर इज एन आइडियल बफर बिकॉज इस कॉन्सेंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड में ज्यादा है और दूसरे इसका पीके जो है दैट इज क्लोज टू पीएच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो कोई बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयंस और कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कुछ भी नहीं है, सबका सब रीअब्सॉर्ब हो गया। अब जो ये बाय हाइड्रोजन आयंस है ये जो एक्स्ट्रा 80 मिली इक्विवेलेंस नॉन वॉलेटाइल थे, ठीक है, जो रीअब्सॉर्ब नहीं हुए बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये आपका फॉस्फेट बफर है रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड में। ये फॉस्फेट जो है इतने ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं तो ये रह जाते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो कुछ रोल जो है इन फॉस्फेट बफर्स का है कि NaHPO4 और NaHPO4 इस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, NaHPO4 यानी फॉस्फेट सॉल्ट बन के हाइड्रोजन जो है वो एक्सक्रीट होती है। आयोनिक फॉर्म में नहीं एक्सक्रीट होगी, आयोनिक फॉर्म में एक्सक्रीट करने के लिए इसको 2600 लीटर्स ऑफ यूरिन चाहिए होगा। तो कुछ जो है ना हाइड्रोजन आयंस वो फॉस्फेट बफर्स के साथ कंबाइन होके निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम अंदर आ जाएगी, हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी एंड फॉस्फेट बफर ने आपको काम कर दिखाया। So, as long as there is excess bicarbonate in the tubular fluid, most of the hydrogen situated will combine with the bicarbonate. जब एक्सेस बाइकार्बोनेट सारी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गई एंड देयर इज नो बाइकार्बोनेट लेफ्ट इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, तो क्या होगा, एक्सेस हाइड्रोजन आयंस विल कंबाइन विद H3O4 टू फॉर्म NaH2PO4, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैं दिखा रही थी, ये देखो यहाँ पे बाइकार्बोनेट था, कार्बोनिक एसिड था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब बना। लेकिन अब जब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, सारे के सारा हाइड्रोजन था, बाइकार्बोनेट कंबाइन कर दिया with the hydrogen ions. अब जो हाइड्रोजन आयंस पड़े हुए 80 मिली इक्विवेलेंट दे विल कंबाइन विद द फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर का मसला ये है कि अच्छा हाँ, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात रिगार्डिंग फॉस्फेट बफर। In this case, the bicarbonate that is generated in the tubular cell and enters the tubular capillary represents a net gain of bicarbonate ions by the blood, rather merely a displacement of the filter. बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर बन रही है और यहाँ से आ रही है, ये जो कार्बोनिक एसिड बनाती है और हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं, तो ये जो है ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो यहाँ जो फिल्टर हुए थे उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक्चुअली इस सिनेरियो में एक न्यू बाइकार्बोनेट बन रहा है। आई बात समझ में, एक नया बाइकार्बोनेट बन रहा है। देखो ये देखो, ये जो बाइकार्बोनेट आयन था यहाँ पे जो बना है, ठीक है, एक्चुअली ये रिप्लेसमेंट है इस बाइकार्बोनेट की, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट निकल रहा है बॉडी से, तो ये बाइकार्बोनेट जो है ये जो बाइकार्बोनेट है ये एक्चुअली ये इसकी रिप्लेसमेंट है, कोई नया बाइकार्बोनेट नहीं है। ऑल्दो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बाइकार्बोनेट, लेकिन ये जो फिल्टर हुआ है वो एक और फॉर्म में रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट ब्लड में नहीं एंटर हो रहा। लेकिन फॉस्फेट बफर सिस्टम में यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट बन रहा है वो एक न्यू बाइकार्बोनेट आयन, वो क्या है, एक न्यू बाइकार्बोनेट। याद रखना, न्यू बाइकार्बोनेट का लफ्ज नहीं भूलना। जब फॉस्फेट के साथ आप कंबाइन करते हो हाइड्रोजन आयंस को, तो यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, लेकिन ये एक न्यू बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है, जो कि कहाँ से बन रहा है, कार्बोनिक एसिड से और कार्बन डाइऑक्साइड से,
जो विच इज कमिंग फ्रॉम द अदर इंटरस्टिशियम और द रीनल ट्यूबुलर सेल से बन रही है, ठीक है, उससे जो बाइकार्बोनेट, न्यू बाइकार्बोनेट, भूलना नहीं। Therefore, whenever a hydrogen ion is secreted into the tubular lumen and it combines with a buffer other than the bicarbonate, the net effect is addition of a new bicarbonate to the blood. आई बात समझ में कि जब भी एक हाइड्रोजन आयन सिक्रिएट होता है ट्यूबुलर ल्यूमेन में और कंबाइन करता है विद अ बफर अदर देन बाइकार्बोनेट, तो नेट इफेक्ट क्या है? एडिशन और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बाइकार्बोनेट आयन टू द ब्लड। सो हाइड्रोजन आयन जो सिक्रिएट हो रहा है इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन, if it combines with a buffer other than bicarbonate, यहाँ तो कोई बाइकार्बोनेट नहीं है ना, ये हाइड्रोजन आयन if it is not combining with the bicarbonate, it's combining with another buffer, so what will happen? A new bicarbonate is added into the tubular fluid, right? उसके बाद एक और बफर है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट बफर जो है वो आपका अमोनिया बफर है, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अच्छा मसला ये क्या है कि अब फॉस्फेट बफर्स भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड में, क्योंकि फॉस्फेट भी रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बफरिंग इज डन बाय द अमोनिया बफर सिस्टम इन कंडीशंस लाइक एसिडोसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अमोनिया बफर सिस्टम क्या करता है, वो रेगुलेशन करता है, एसिडोसिस में रेगुलेट कर रहा होता है ये अमोनिया बफर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अमोनिया बफर सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, अमोनिया एंड अमोनिया माइंस, ठीक है। अमोनिया माइंस कहाँ से आते हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामिन व्हिच कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स इन द लिवर। अब ये जो ग्लूटामिन है ये पहुंच जाती है आपके किडनीज के सेल्स में, ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, ग्लूटामिन पहुंच गई। अब जब ये सेल के अंदर पहुंच जाती है तो ये ग्लूटामिन मेटाबोलाइज होती है और बनाती है दो अमोनियम आयंस और दो बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। दो अमोनियम आयंस और दो बाइकार्बोनेट बनाती है, ये देख लो, ये ग्लूटामिन लिवर से मेटाबोलाइज होकर अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म से ये एंटर हो गई आपके ट्यूबुलर सेल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है। और अब ये जो है यहाँ पे सी मेटाबॉलिज्म होगी ग्लूटामिनेज एंजाइम से और दो बाइकार्बोनेट बनेंगे और दो अमोनियम आयंस बनेंगे। ये अमोनियम आयंस जो है ये निकलेंगे इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड और वो कंबाइन करेंगे क्लोराइड आयंस के साथ टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप देखो कि अमोनियम आयंस ये है NH4, अमोनियम आयंस और अमोनिया आयंस, ग्लूटामिनेज एक्ट करेगी ग्लूटामिन पे, दो बाइकार्बोनेट बनेंगे और दो अमोनियम आयंस बनेंगे, ये अमोनियम बाहर निकलेगा, कंबाइन करेगा क्लोराइड को, सॉल्ट बनाएगा। ये देखो ये दो न्यू बाइकार्बोनेट ऐड हो गए आपके ब्लड में। ये मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगी इन बाइकार्बोनेट की जब फिनिश। ये काम जो हो रहा है ना ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हो रहा है कि अमोनियम आयन जो है ना वो निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका दूसरा जो है ना कलेक्टिंग डस्ट में, कलेक्टिंग डस्ट में क्या अमोनिया बन रहा है, कलेक्टिंग डस्ट में क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है ये इट विल लीव द सेल, इट विल एंटर द ल्यूमन, यहाँ पे ये जो है कंबाइन करेगा इस एक्सेस हाइड्रोजन आयन के साथ फॉर्म अमोनियम, ठीक है। अमोनिया आयन की ये बात है, अमोनिया आयन की ये इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो इट कैन मूव थ्रू द सेल, लेकिन जब अमोनियम बन जाएगा इट विल नॉट गो बैक, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे, अमोनियम जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, राइट। चलिए अनम्यूट कर दे सबको, अनम्यूट कर दे बेटा, सबको करते हैं, वो एक साथ बच्चा तो नहीं बोलता है ना, वो जवाब नहीं देता है।
बात जो नहीं समझ में आई मुझे पूछ लो, क्योंकि मैंने आज आपको पढ़ाया बहुत 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 इम्पोर्टेंट था। इसमें से बहुत सवाल आपको आ जाते हैं। डोंट टास्क, डोंट टास्क क्या होता है? एग्जाम में तो मुझे ना समझ में आई। बड़ा अच्छी भेजो। बहुत इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिंग डक्ट्स में क्या होता है? दे आर परमेबल टू अमोनिया लाइक कैन bी is secreted by the tubular membrane in the liver where luminal membrane of this part of the tubule is much less permeable to ammonia and it has reacted with and it is trapped and it is बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सुनने उठ के मैं तुम्हें ऑनलाइन किताब पे निकाल के देती हूँ, उससे पढ़ो। ग्लूटामिन जो है वो अपने साइज हो के अमोनिया माइंस और बाइक या फिर बाइक अमोनिया जो है यहाँ से निकल रही डिफ्यूज हो रही है, क्लोराइड के साथ कंबाइन हो रही है, अमोनियम बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है और एक कार्बोनेट इज एडेड, यानी कि जब फॉस्फेट और कंबाइन करेगी तो बाइकार्बोनेट रिलेटेड सेल से बच्चों क्या होता है कि ऊपर जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो रही है थ्रू सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, और ये जो ट्रांसपोर्ट है टू कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम यूनिट बनता है प्लेटेड सेल्स में 100 फोल्ड ऊपर हालांकि परसेंट है वो ये हाइड्रोजन आयन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 95% जो है सिक्रीट हो गए हैं। वो सिर्फ हो जाता है यूरिन के मैकेनिज्म क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन आयन और only 2 to 3 folds increase हो रही है अब ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स और इन ट्यूब्यूल्स पे आते हो जहाँ पे इंटरस्टेट है प्राइमरी एंड ट्रांसपोर्ट से सोडियम फिक्सिंग हो रही है पेयर ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम तो यहाँ पे की आवाज कम हो गई है, आवाज नहीं आ रही। 100.5 तक चली जाएगी यहाँ पे
Any question? मैंने आज पढ़ाया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपके ध्यान में आएगा।